So shall we start? How many people are there? I think six people are there. Shall we start? Or we should wait for another 2-3 minutes? If You some can ask. people Now you are online. start करें? Yeah, you can start. Hello everyone. First, I think you should go for then group introduction or something. Right. Hello everyone. Good evening. So today we all are here for the topic tension बहुत है. The very common topic we have chosen this time, which is relevant to all of us in day-to-day life. So we will try to cover most of the things related to which causes us tension. So before going to the topic and sharing the things about that, let me brief you about the group. So core HRIR, when this name clicks, the first word hits my mind is discipline. This group is more than HR information sharing only. It is more relevant to discipline, valuable sharing, the maintenance of decorum of the group. This is something which hit every one of us when we talk about core HR and IR. A group started in 2017. Mr. Veer Bharat, जिनको हम सब जानते हैं, the common name. When we talk about core HRIR, he is the one who hit all of us. बहुत सारी चीजें इसमें स्टार्ट हमने करी हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, लर्निंग वीकेंड वी हैव स्टार्टेड, देन चाय बडी in November 17, along with that Shining HR Award. Now this candid conversation in this year only 2020. And for candid conversation we are here today. Apart from that, we have Bangalore chapter, Pune chapter, and we have professionals from not only from NCR but from all the major cities in India. Today we have Deepak sir with us for this particular topic. हम सब उनको जानते हैं, पहले भी सर से हमने काफी कुछ सीखा है, और आज ही विल बी एडिंग ए लॉट ऑफ वैल्यूज टू द डिस्कशन. How to manage stress, what are the reasons for stress that we both are going to discuss with all of you. It's gonna be more kind of interactive session rather than just a PPT session. So you can put your questions in the chat box. We can take that as well. तो सर आज स्टार्ट करें आज का टॉपिक. बिल्कुल बिल्कुल श्योर. ओके, तो टेंशन की हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ में. एवरीवन इज लाइक यार बहुत टेंशन है, यार बहुत टेंशन है, घर में भी, ऑफिस में भी, फ्रेंड्स में भी. अब वो टेंशन क्या है, कहाँ से आती है, क्यों आती है, कौन कौन से मेजर रीजंस हैं, किस किस को हम अवॉइड कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीजन ऑफ टेंशन, और कुछ बीच में हम क्वेश्चंस भी लेंगे. ऑलरेडी वी गॉट द क्वेश्चंस फ्रॉम मेंबर्स, तो उनका भी हम विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑन those things. Deepak sir is going to advise all of us how to manage the stress, how to reduce the tension. So अगर टेंशन की बात करें तो इट इज समथिंग डेली लाइफ में कौन कौन सी चीजें हैं. If we'll talk about office, there are certain things जो हम सब में कॉमन है, like not setting the priorities, right sir? Yes, that's true. So like every day
we just wake up, we go to office, come back home, and at the end of the day, we feel that the day was not productive. Now, we need to identify why the day was not productive. Were we able to prioritize our day? Were we able to identify what things we are doing in the day, and whether it is fruitful or not fruitful, important or not important, how much time it is killing, which effect this thing is going to put on us? So are we thinking that much, or it is just like कुछ आया हमने कर दिया and then we are saying यार नहीं नहीं पता नहीं इसकी वजह से इतनी टेंशन हो गई. Isn't it, sir? That's right, absolutely right. You are saying So there are a lot of factors for stress. Basically, there are so many things which we can identify in our work life, or you can say personal life. So there are four major things which everyone goes through. ऐसी ये अपनी तीन चार चीजें हैं जो हम सब लोग जिनसे एक साथ आते हैं, मतलब मिलते हैं. जैसे स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आप समझिए एंजाइटी हो गई, या फिर कुछ लोगों को डिप्रेशन हो जाता है. तो सुनने में तो ये चारों चीजें लगभग एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली में एक नहीं है, ये चारों अलग अलग स्टेजेस हैं. उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो आपको एकता जी अभी बताएंगे रीजन्स. तो जो आज की कन्वर्सेशन है ये एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, इट्स नॉट ए फॉर्मल कन्वर्सेशन, एंड we will try to discuss all these things here, and we'll try to find all kind of solution, the inner solution and the exterior solution. जो solution हमारे खुद के अंदर है, कुछ solution जो हमारे circumstances में या हमारे external factors के साथ में है, उन सब चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करें. तो हम प्रॉब्लम टेंशन की बात कर रहे थे कि वो आती कहाँ से है. समवेयर आई फील कि हमारे खुद को मैनेज ना करने की वजह से वो आती है. हम अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पाते. हमें एक्चुअल में हम अपना डे डिसाइड करके नहीं चलते हैं. वी लैक इन प्लानिंग एंड वी लैक इन डिसाइडिंग द प्रायोरिटीज. हमारे कौन से पर्टिकुलर थॉट हमें डोमिनेट करके रखते हैं, हमारे माइंड को पूरा दिन भर रूल करके रखते हैं. हम अपना थॉट कौन सा डिसाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डे जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टाइम किल होता है और टाइम यूटिलाइज होता है. वेदर इट किल्स आवर टाइम और वी आर thought decides whether we are going to get the tension or we are going to get the solution. अब हम बात करते हैं, जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक विचार आपकी जिंदगी जीवन बदल देता है. तो समटाइम्स बैक आई वाज लाइक यार ये विचार जिंदगी कैसे बदलता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, पता नहीं कैसे बदलता है. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देती हूँ. सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं, आई एम ड्राइविंग, समबडी एल्स इज आल्सो ड्राइविंग. कोई आया, अब उसने ही ड्राइव वेरी फास्ट और मुझे लगा उसने मेरे को ओवरटेक किया. अब मैं आराम से जा रही थी, गाने भी सुन रही थी, ड्राइव भी कर रही थी. अभी अचानक से क्या हुआ, एक थॉट मेरे माइंड में आया कि सामने वाले ने मेरे को ओवरटेक किया. अभी मैं सब कुछ भूल गई हूँ. वो पर्टिकुलर थॉट मेरे माइंड को इतना रूल कर रहा है that I allowed that thought to dominate my mind, that my next 1 hour or half an hour I forget everything and started chasing the guy who overtook me. So this is what the priority of thought. I have given that much priority to that particular thought which is not productive at all. So this is the I think the simplest way to understand कि एक particular thought हमारे दिन को कैसे किस तरीके से उसको चेंज करता है. इसी तरीके से लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, डे टू डे एक्टिविटी में भी वो चीजें वो सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं. नाउ हम कौन से पर्टिकुलर थॉट को चूज करते हैं और उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने पूरे दिन पर रिएक्ट करते हैं. तो हमें हमारा जो थॉट सेट करने का क्राइटेरिया है उसमें शायद हम सबसे ज्यादा लैकिंग है. तो हमें अपने एक डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, व्हाट इज माय गोल. टुडे आई एम हियर, टुमारो आई वांट टू गो हियर. सो फ्रॉम हियर आई एम मूविंग हियर.
which particular thoughts where I need to put my energy, so that I can get the result and I can eliminate the unnecessary stress, unnecessary problems, which all things I should avoid in between. Right, sir? Deepak, Yes, sir? that's true. दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग आई फील कि हमें टेंशन होती है, क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटीज, अपना थॉट, अपना हमें क्या चाहिए, वेदर हम कोई भी काम करना शुरू करने से पहले शायद हम सोचते नहीं है, वी ऑलवेज यूज टू थिंक एट द एंड ऑफ द टास्क, जब हम वो चीज खत्म हो जाती है, जब उसका रिजल्ट नहीं आता है, देन हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी, हम यहाँ आए, हमारा इतना टाइम चला गया, लेकिन हमें आउटपुट नहीं मिला। सो इट्स बेटर कि वो चीज हम काम को शुरू करने से पहले स्टार्ट करें कि वेदर इट इज प्रोडक्टिव, वेदर इट इज नीडेड और नॉट नीडेड, वेदर वी शुड पुट आवर एनर्जी देयर और वी शुडंट पुट आवर एनर्जी देयर। लाइक सपोज आई हैव अ प्रोजेक्ट जो मेरे को 1 महीने के बाद करना है, राइट? सो दैट इज नॉट माई प्रायोरिटी नाउ। जनरली दिस हैपेंस विद ऑल ऑफ अस कि ठीक है 15 दिन के बाद देखेंगे, 20 दिन के बाद देखेंगे। बट होता क्या है, जब वो 20 दिन बच जाते हैं तो हम लगता है यार 15 दिन, अभी 20 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं, वो सारा टाइम हम किल कर देते हैं। और ये जो पर्टिकुलर 1 मंथ होता है, हम उसको इस तरीके से वेस्ट करते हैं, जैसे इंटरनेट यूज करना, नेट सर्फिंग। मैंने एक लिंक पे क्लिक किया, उस लिंक से मेरे को एक और लिंक मिला, फिर एक और लिंक मिला, कब 2 घंटे चले गए मुझे पता ही नहीं चला। सो दिस इज द मेजर टाइम किलर, जो डेली थोड़ा थोड़ा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो रहा है, और वो एक ऐसी स्टेज में चला जाता है कि देन वी लैक ऑफ टाइम, तो वो एंजाइटी क्रिएट होती है, स्ट्रेस क्रिएट होती है। हम उतना कर सकते हैं, हम सबके अंदर वो पोटेंशियल होता है, बट बिकॉज वी वर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज इट, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू मैनेज आवर टाइम ऑन टाइम, दैट्स वाई वो लास्ट में ना हमें आउटपुट मिलता है। और दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जो हम सबके साथ होती है, और हम सबको ये चीज पता भी है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू कि हमें नहीं पता या मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, हम सबको पता है, बट स्टिल हम उसको मैनेज नहीं करते। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग। और हम क्या करते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को रिजोल्व करने में चले जाते हैं बेसिक्स छोड़ के, तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कोई भी प्रॉब्लम एकदम से बहुत बड़ी नहीं होती है। वी ऑल जैसे मैंने ये 1 मंथ वाला एग्जाम्पल दिया कि आपने अभी वो मंथ लेके चल रहे हैं माइंड में, ऑलरेडी एक थॉट आपने अपने आप को एक कमांड दे दी है कि आपके पास 1 मंथ है अभी, आपने उस प्रायोरिटी को सेकेंडरी प्रायोरिटी बना दिया है, और मे बी द मिसलेनियस वन, कि ठीक है बाद में देखेंगे जो होगा, डजेंट मैटर हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस प्रोजेक्ट इज टू यू। some people do excellent, why? Because on time they do the things, or this is something which we call self discipline, which is very important। तो अगर मैं टेंशन की बात करूं कहाँ से शुरू होती है, तो सबसे पहले अपने आप पे वर्कआउट शायद हमें स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हम सबको एक टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स पता है, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। सो उसको शायद हमें अपने डेली लाइफ में, डेली अगर हम उसको 10 दिन करें, तो बहुत सारे टाइम किलर हम उसमें से हटा सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने थॉट का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। दीपक सर? एकता, यहाँ पे कुछ चीजें हम करना चाहेंगे इसमें। श्योर सर। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, प्रैक्टिकल एग्जांपल देके। देखो, कुछ चीजें क्या है कि वो हम लोगों के डीएनए में आ चुकी हैं, ठीक है। अब इस चीज को मैं आपकी बात को लेके समझाता हूँ आपको, कैसे चीजें हमारे डीएनए में आई हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमें अच्छी तरह मालूम है, साल में एक बार एग्जाम होता है, और अप्रैल या मई या मतलब मार्च अप्रैल के महीने में आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो पूरे साल एक कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं, मतलब 2 घंटे रोज, 3 घंटे रोज, 4 घंटे रोज स्कूल के बाद, मतलब वो डेली पढ़ते हैं, और उसके बाद एग्जाम आता है तो उनकी वही कॉन्स्टेंसी बनी रहती है, भाई 2 घंटे 3 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब आप ऐसा समझिए कि स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर आके कुछ भी नहीं करते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना स्कूल में पढ़ते हैं ना घर पे पढ़ते हैं, और जब एग्जाम आता है उससे बस 3 4 5 दिन पहले नोट्स लेके और उसको फिर पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में एग्जाम दे देते हैं। तो अब रिजल्ट क्या होगा ये तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। राइट। जहां तक
हम अब इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं चीजों को। जो 4 फैक्टर हैं बेसिकली, स्ट्रेस, उसके बाद में फिर आप समझिए द नेक्स्ट लेवल इज ना, अब मैं थोड़ा सा दूसरे रो में चला गया। फर्स्ट लेवल है आपका टेंशन का, नेक्स्ट लेवल है आपका स्ट्रेस का। अब आप उसके बाद समझिए कि द थर्ड लेवल इज बेसिकली फॉर एंजाइटी एंड फोर्थ लेवल इज डिप्रेशन। सो जब भी हम कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी काम हम करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, उस काम की टेंशन होनी शुरू हो जाएगी। टेंशन किस लिए होगी? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो उस काम से अटैच है। आप उस काम को करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने या तो ठीक से प्लानिंग नहीं की है, या उसके ऊपर ठीक से आपने वर्कआउट नहीं किया है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपने मिस कर दी है। तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड में आपके पड़ी रहेगी, और आपको मतलब लगेगा कि कुछ मिसिंग है। आप मेहनत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपको अपना 100% देना चाहिए था वो शायद नहीं आ पा रहा है। ये लेवल जब इंक्रीज हो जाता है और आपकी एक्सपेक्टेशन के लेवल से जब आपके रिजल्ट और जो प्रोग्रेस है आपकी वो धीरे धीरे घटने लगती है, तो फिर आपको क्या कहते हैं इसमें तनाव होने लगता है। फिर आप के मन में निगेटिव विचार आने लगते हैं कि होगा नहीं होगा, इसने होगा। वहां पे आपका जो दिमाग है वो एक गेम खेलता है, जिस एक ब्लेम गेम खेलता है। मतलब वो अपने आप को मतलब अपने लिए आप एडवोकेट बन जाते हैं और दूसरे के लिए आप जज बन जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एब्सोल्युटली राइट। आप अपने को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं हर चीज में, और दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब वो दूसरा कोई भी हो सकता है, आपका काम हो सकता है, काम का एनवायरनमेंट हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपके कुलीग हो सकते हैं, आपकी फैमिली में अदर मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो उससे सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, लेकिन प्रोसेस यही है कि फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। और जब उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, तो फिर और जब काम भी नहीं हो रहा होता है और आपका ब्लेम गेम जो है वो भी फ्रूटफुल नहीं होता, देन फिर आपको एंजाइटी होती है। फिर Yes, आपको first we keep on convincing ourselves. हाँ हमें अच्छे फिर से पता भी होता है that we are doing wrong, but still जब तक हम कन्विंस कर पाते हैं, हम उसी फॉर्म में रहते हैं कि हम कन्विंस हो रहे हैं, तब तक वो तो टेंशन की फॉर्म रहती है। हाँ, अब इसमें जब एक बार आपको एंजाइटी का ट्रिगर हो गया, तो फिर आप की जो प्रोडक्टिविटी है, जो आपकी थिंकिंग का प्रोसेस है, वो टूट जाएगा। जब आपका थिंकिंग का प्रोसेस टूट जाएगा, तो फिर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उतने मैच्योर रिजल्ट्स नहीं होंगे, वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। आप देख लीजिए, जैसे आप इंटरव्यू देने, आपको एक इंटरव्यू कॉल आई, अभी इस चीज को आप देखिए, आपको जॉब चेंज करना है। आपको जब एक जॉब चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? आप टेंशन में रहेंगे कि भाई मुझे जॉब चेंज करना है। देन आप naukri.com खोलेंगे, लिंक्डइन पे जॉब सेक्शन खोलेंगे, मॉन्स्टर खोलेंगे या शाइन खोलेंगे, और वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो जब आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू करेंगे, वैकेंसीज को पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद में आपने पढ़ लिया, देख लिया, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका जो सीवी बना हुआ रखा है, आप उसी को उठा के भेज देंगे। और जब तक कोई रिप्लाई नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर एक अब टेंशन से ऊपर का एक लेवल आ चुका है स्ट्रेस का, वो आपको एक स्ट्रेस हो जाएगी कि कंसल्टेंट को यार सीवी भेजा, उसने भी तो कोई जवाब नहीं दिया। या आपने किसी को लिंक्डइन पे इनबॉक्स में मैसेज भेजा कि ड्यू टू कोविड आई एम नॉट इन जॉब एंड प्लीज हेल्प मी और समथिंग लाइक दैट, और उस आदमी ने कोई आपको रिप्लाई नहीं किया, तो फिर आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा कि भाई ये कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ पे एक चीज आप बैक एंड में ध्यान रखिए, यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कंटिन्यू बार रेज कर रही है। आपकी राइट। एक्सपेक्टेशन की धीरे धीरे बार रेज होती जा रही है। उसके बाद में फिर सपोज आपको इंटरव्यू कॉल आ गया, तो अब आपका स्ट्रेस लेवल
बिल्कुल ऊपर आ जाएगा कि भाई अब इंटरव्यू कॉल आ गया, अब इंटरव्यू देने जाना। अब कई बार आप देखेंगे कि बहुत अच्छे कैंडिडेट भी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते। वो सब्जेक्ट को जानते हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, बट कह नहीं पाते। वो अपॉर्चुनिटी में उन चीजों को भूल जाते हैं। यहाँ पे जो आपने स्ट्रेस लेवल में जो चीज मिस कर दी वो है आपने कम्युनिकेशन। तो आप ये चीज समझिए, आपने कम्युनिकेशन कैसे मिस किया। अब इंटरव्यू ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपने उसको सुना, आपने उसको समझा नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अभी जैसे हम ये वेबिनार कर रहे हैं और सपोज कि हमारे अभी 18 या 19 लोग देख रहे हैं, तो अब इन लोगों में से कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग उन चीजों को समझ रहे हैं जो हम बात कर रहे हैं। वो एब्सोल्युटली, कितने लोग उस चीज को समझ रहे हैं, कुछ लोग तो सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं उनके लिए ये एक जस्ट लाइक ए मूवी है कि दो आदमी बात कर रहे हैं और स्ट्रेस टेंशन की कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो ठीक है, मतलब इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू इंटरेस्ट और समथिंग। ये तो हम रोज सुनते हैं इस तरह की बात। कुछ लोग उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो इसके साथ ये भी हो सकता है, भाई इसके साथ ये भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस चीज को रिलेट कर रहे होंगे कि यार ये ऐसा हुआ था, तो यार ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही होता है। तो ये आपका अलग अलग लेवल पे अलग अलग आपको कम्युनिकेशन की चीजों को समझना पड़ेगा। अब इंटरव्यू में आप जाते हैं, इंटरव्यू और आपसे कोई बात कह रहा है, तो वो जो भी कम्युनिकेशन आपसे कह रहा है उस कम्युनिकेशन के 3 लेयर्स हैं। सबसे पहला जो लेयर है वो आपका है मीनिंग ऑफ द लाइंस। सेकेंड लेयर है आपका मीनिंग बिटवीन द लाइंस। थर्ड लेयर है आपका मीनिंग बिहाइंड द लाइंस। अब इन तीनों को अगर मैं एक एक शब्द में कहना चाहूं तो पहला लेयर है व्हाट। व्हाट व्हाट, ठीक है, क्या है। दूसरा लेयर है वो है आपका हाउ, और तीसरा लेयर है व्हाई। तो जो मीनिंग बिटवीन जो मीनिंग ऑफ द लाइंस है वो है व्हाट, और जो मीनिंग बिटवीन द लाइंस है वो है हाउ, और जो मीनिंग बिहाइंड द लाइंस है वो है व्हाई। तो अगर आप इन तीनों चीजों पे फोकस है और आपका दिमाग शांत है और आप कूल हैं तो आप तीनों मीनिंग समझ लेंगे। और अगर आप अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को अगर आप काबू में नहीं रख पाए हैं और आपका मस्तिष्क शांत नहीं है और उसके अंदर कंटिन्यू थॉट्स जनरेट होते जा रहे हैं, तो फिर आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, कुछ ना कुछ आप मिस कर देंगे। एब्सोल्युटली। तो इसमें हमें जिस तरीके से माइंड मॉडल प्रोसेस कहलाते हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। आई वॉज एडिंग टू दैट कि जैसे हम जाते हैं पर्टिकुलर स्ट्रेस को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं क्योंकि बिकॉज वी थिंक नेगेटिव फर्स्ट कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, क्या पूछेगा, होगा कि नहीं होगा। We shouldn't think like that. Instead, we should think that I know this much. There is a profile. I should go and perform. तो जब अगर हम सिर्फ वहां तक सोचते हैं, ठीक है मेरा एक एक्सपर्टीज एरिया है, सपोज आई हैव लर्न समथिंग इन 5 years, another person can learn in 7 years, or one person can learn in 1 year as well. We all have a different intellectual level, we all have a different IQ level. तो एक किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए हमें अपने पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम सही कर रहे हैं तो हमें फिर ये नहीं वी मेक परसेप्शन ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम किलिंग हम क्या करते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुद बहस करते हैं, खुद ही आंसर करते हैं, और उसका लास्ट में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो हमारा माइंड वो इस तरीके से वो थॉट्स का जाल बिछा लेता है कि हम अपने ही थॉट से बाहर नहीं आ पाते। सामने वाला चाहे कितना भी पॉजिटिव हो सकता है वो हमसे बहुत इजी चीज पूछे, हो सकता है कि उसने 10 कैंडिडेट और बिठा रखे हो और उसका ऐसा कोई इंटेंशन ही ना हो, अरे यार ये पूछ लिया, मुझे बताया नहीं, मेरे पास जॉब नहीं है, 4 महीने से चली गई है। पहली चीज तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी प्रॉब्लम है दैट इज नॉट परमानेंट इन द लाइफ। First thing we need to understand, we need to give this positive input. The first line which we need to feed our mind is nothing is permanent in life, so the problems are, चाहे अभी if we talk about the ongoing pandemic, बहुत सारी जगह कोविड से मेरी जॉब चली गई है, 4 महीने से जॉब नहीं मिल रही है, 6 महीने से नहीं मिल रही है। तो इस चीज से शायद सीखना चाहिए। there are lot of other things which we are managing with very limited sources now which we were not doing earlier.
लाइक क्रेडिट कार्ड पे हमने स्पेंडिंग बंद कर दिया है, या फिर हम लोगों ने जैसे बाहर जाना बंद कर दिया है, तो लाइफ उससे रुकी नहीं है, जीवन चल रहा है। बस हमारे माइंड में क्या है, अब कैसे चलेगा, अभी चल रहा है तो आगे भी चलेगा। सो इंस्टेड की कैसे, क्यों हो रहा है ऐसा, कब मेरे को ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा, वी बेटर कि हम एक लिस्ट बनाए कि दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल, और इन पर्टिकुलर ऑप्शंस पे अब मैं काम करके देखता हूँ या देखती हूँ। हमें एक सॉल्यूशन मोड में आना चाहिए। हर किसी के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना हो। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, थोड़ा हटके। अगर जरूरी नहीं है मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं सिर्फ जॉब का ही वेट करूं, आई कैन स्टार्ट अ वेरी स्मॉल बिजनेस एज वेल। तो हमें अपने माइंड को ओपन रखना है, वी नीड टू बी वेरी ओपन फॉर द सॉल्यूशंस। तो हमें अपने जो ब्रेन को एक हम खुद से बांध के रखते हैं, वी बोर्न विद सम थॉट्स, जैसे कि ये ऐसा जॉब कर रहे हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मेरी आज मेरे 15 लाख का पैकेज है, मैं 5 लाख पे ज्वाइन नहीं कर सकता। भैया 15 लाख was different scenario, there was a different scenario, now scenario is totally different. What I need to decide, what is my priority now, my family, 15 lakh is not my priority, running my family is my priority. So that I am very much clear on my priority, I am okay with that 5 lakh. That doesn't mean that I do not have potential. This is, again, this is temporary. सो एक किसी का क्वेश्चन बीच में आया था, आई वाज गोइंग थ्रू कि इस टफ टाइम में, जैसे कोविड में मेरी जॉब लॉस का हो गया है, तो जस्ट लिस्ट डाउन द सॉल्यूशंस, आप क्या कर सकते हो, कहाँ का स्पेंडिंग बंद कर सकते हो, हालांकि वो ऑटोमेटिकली हो ही जाती हैं, बट स्टिल, एंड यू मेक ए लिस्ट किन किन से आप हेल्प मांग सकते हो। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यू शुड अंडरस्टैंड दैट दीज थिंग्स टेक्स टाइम। सो इंस्टेड की 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ नहीं हुआ, या ट्राई कर रहा हूँ नहीं हुआ, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अगले 4 महीने में मेरे को वापस से ट्रैक पे आ जाना है, तो अगले 4 महीने मेरे को ये काम करने हैं, इन लोगों से मुझे बात करनी है, इतनी जगह मुझे इंटरव्यू देना है, या मेरे को एक छोटा बिजनेस अगले 6 महीने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर काम से थोड़ा सा अपना काम चलाना है। तो इस तरीके से हम अपने ब्रेन को उस तरीके का फीडबैक दें, उस तरीके के थॉट्स दें कि हम उसको करने में सक्षम रहें, हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें कि मेरे को स्ट्रेस, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेस आप मोटिवेशन वाले थॉट्स अपने माइंड को दो। तो अगेन, थॉट प्रायोरिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीपक सर, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? और एक ना इसमें कई सारी चीजें हैं। देखो, जब भी ये स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, या आपका डिप्रेशन हुआ, या टेंशन हुई, ये अनस्टेबल माइंड से जनरेट होती हैं। ठीक है। राइट अ, सर। मैं इसको थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ। होता क्या है कि हम काफी पहले एक मैंने सेशन किया था, उसके अंदर मैंने ये चीज डिस्कस की थी। जो ये हमारी ह्यूमन फिजिक है ना, जो ये लाइफ है, बेसिकली जो ह्यूमन लाइफ है, ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है। ये 3 चीजों से मिलकर बनी है। पहला है आपका फिजिक, जो ये फिजिक है। दूसरा है आपका जो ब्रेन है, और तीसरा है जो आपकी सोल है। ठीक है, जो मेन एनर्जी है जो इस दोनों चीजों को चलाती है। अब आप इसमें ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक अलग तरह का की साइंस है जो हमें समझनी पड़ेगी इसको। अगर आप किसी भी चीज को रूट से खत्म करना चाहते हो तो आप उस चीज के रूट में ही जाओ। तो अभी क्या है कि इस फिजिक का जो भोजन है वो क्या है, वो खाना है। जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम वेज नॉन वेज जो भी हम फूड लेते हैं, वो इस फिजिक के लिए फ्यूल है। तो जब हम उस फ्यूल को लेते हैं तो ये फिजिक काम करती है, और उससे आपका शरीर का पोषण होता है, आपका शरीर थोड़ा उससे बड़ा होता है, चलता फिरता है, काम करता है। और इसको आप डेली क्लीन भी करते हैं। मॉर्निंग में उठ के आप जाते हैं तो आप इसे क्लीन भी करके आते हैं। उसके बाद में जो आपका मस्तिष्क है, उसका फूड क्या है, आपके ब्रेन का फूड क्या है? आपके ब्रेन का जो फूड है वो है नॉलेज। ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। आप इंफॉर्मेशन को नॉलेज मत समझिए। आप कोई भी चीज जो पढ़ते हैं या जो देखते हैं, जो भी 5 सेंसेस आपकी डेटा
दिमाग को देती हैं वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में जाके कलेक्ट होता है। उस इंफॉर्मेशन को आपकी विजडम फिर नॉलेज में कन्वर्ट करती है, और विजडम ही ये डिसाइड करती है कि आप उस नॉलेज को यूज कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज देखने की बात है कि हम अपने ब्रेन को कभी भी क्लीन नहीं करते, जो हम उस पर कोई काम नहीं करते। मतलब हम हार्ट के लिए काम करते हैं, हमको ब्लड प्रेशर होता है, हम बीपी की दवाई लेते हैं, हमको शरीर में बुखार है या खांसी है उसके लिए हम दवाई लेते हैं, लेकिन हम ब्रेन को कभी भी ट्रेन नहीं करते, हम ब्रेन के लिए कोई काम नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो हार्डली मेरे ख्याल से 1% से भी कम लोग हैं जो ब्रेन के लिए काम करते हैं। जबकि आपका चाहे ऑफिस में बैठ के काम करना हो या घर पे आपको रिलेशंस मेंटेन करने हो, वो सब आपके ब्रेन से ही चलते हैं, वो आपका सब माइंड से चलते हैं। और यहाँ पे बहुत बहुत छोटी सी टेंडेंसी है हम सब की, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम सब ये मानते हैं कि हमारे पास ब्रेन है और चालू हालत में है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और सामने वाला जो मेरे सामने बैठा है उससे अच्छा है। ये Absolutely. This is with every one of us. ये हमारे बिल्कुल एकदम क्लैरिटी है। दूसरी जो चीज है, हम अपना सारा जीवन बिलीफ्स में निकाल देते हैं। बिलीफ कि आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दैट। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता है कि वो बिलीफ है क्या। हम बस एक माइंडसेट से बोर्न होते हैं, उसी के साथ चलते जाते हैं। वो सही है नहीं है, कहाँ से आया, हमें इंफॉर्मेशन की, डेटा की एक्यूरेसी नहीं होती। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि बिलीफ वो चीज है जिसे आप नहीं जानते लेकिन आप मानते हैं। राइट, एब्सोल्युटली। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आई बिलीव आई हैव 2 hands, नो, आई नो आई हैव 2 hands, आई हैव 2 hands, एब्सोल्युटली। तो बेसिकली क्या है कि आपको बिलीव मत कीजिए, आप चीजों को जानिए, राइट। सिर्फ दो चीज रखिए, आई नो और आई डोंट नो। जब आप कहते हैं आई डोंट नो, इट मीन्स आप जानना चाहते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, आप जानना चाहते हैं। अब yes. आपके वीर सर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं इन बिटवीन। व्हाट शुड अ लीडर डू टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द टीम? तो मैं थोड़ा सा इस पे बोल देती हूँ, फिर आप उसमें वैल्यू एडिशन प्लीज दे देना। लीडर जो टीम के स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं और लीडर का उसमें रोल क्या होना चाहिए, तो आई थिंक अगेन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, द रीजन उसका क्या है, वो सबसे पहले पता होना चाहिए लीडर को। द रूट कोज कि वो स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है और किस टीम में किस पर्टिकुलर पर्सन को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो वो 1-to-1 काउंसलिंग भी हो सकती है, वो एक एग्जाम्पल सेट करके भी हो सकता है, वो टास्क को डिवाइड करके भी हो सकता है। बट अगेन पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द टीम कि कौन सा टीम का मेंबर, और एवरी मेंबर इज टोटली डिफरेंट इन द टीम। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक पर्सन को काउंसलिंग से समझ जाएगा, दूसरे को शायद डांट से समझ आएगा, तीसरे को शायद सिर्फ डर है, उसको सब कुछ पता है, उसको थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत है। तो लीडर को स्ट्रेस रिमूव करने के लिए स्ट्रेस का रूट कोज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज को लेके स्ट्रेस आउट है और ऐसा क्यों है, वो चीज आई कहाँ से, और टीम में ऐसा कौन सा मेंबर है जो उसको सबसे इजिली उसको रिड्यूस कर सकता है, सो दैट कि एवरीवन उसी टीम में वो सिनर्जी भी बनी रहे, सिर्फ लीडर पर ही वो डिपेंडेंट ना रहे। दीपक सर, आप इसमें कुछ मेरे को कुछ वैल्यू एडिशन इसमें आप प्लीज सबको देंगे। वीर का जो क्वेश्चन है उसकी सोल ये है कि जो टीम के अंदर स्ट्रेस है उसको एक लीडर कैसे मतलब उसे क्या करना चाहिए जिससे वो एलिमिनेट हो जाए, जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। यहाँ पे दो चीजें हैं बहुत अच्छी सी। पहली बात यह है कि क्या लीडर अपनी टीम से कनेक्ट है। वेरी बेसिक थिंग सर। क्या लीडर का अपनी टीम से कनेक्ट है या सिर्फ कांटेक्ट है। ठीक है, अगर लीडर का टीम से कनेक्ट है तो
उसको फिर दो चीजों में देखना पड़ेगा, क्या स्ट्रेस किसी आदमी की मतलब किसी एम्प्लॉय या आदमी या कुलीग या पीयर जो भी है मतलब उसकी वजह से, या स्ट्रेस काम की वजह से। अगर स्ट्रेस काम की वजह से है तो उसको प्रोसेस की, जो भी उस काम का प्रोसेस है उसको ठीक से एक्सप्लेन करना चाहिए, थोड़ा हैंड होल्ड करना चाहिए और समझाना चाहिए, गाइड करना चाहिए, मेंटर करना चाहिए टीम को Right. कि भाई ये प्रोसेस है, इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये रिजल्ट आएंगे। तो टीम समझेगी और टीम कनेक्ट करेगी। कई बार टीम को किसी काम की वजह से स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल अदर फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस हो सकता है, जैसे सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, कुछ लोगों का नाम पिंक लिस्ट में आ चुका है, कुछ लोगों के साथ कुछ उनकी अपनी फैमिली रिलेशन हो सकते हैं जो उन्होंने डिस्कस किए, या और वो उसकी वजह से कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में 1 to 1 बैठ के ही बातचीत की जा सकती है रूट कॉज को समझने के बाद। लेकिन जनरली जो कंप्लीट पूरी टीम का स्ट्रेस है वो या तो ऑफिस की वजह से या ऑफिस के जो काम का प्रोसेस है उसकी वजह से ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए आपको टीम के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। Yes, और that is very important. आपको अपने जो भी वर्क प्रोसेस है उसके बारे में पूरी जानकारी और पूरी हैंड होल्डिंग आपको थोड़ी करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं है कि सारा काम आप ही करेंगे, बट टीम में अगर आपको वर्क बैलेंस भी करना पड़ेगा, जिसे हम वर्क लोड बैलेंसिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तो वर्क लोड बैलेंसिंग भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2 आदमियों के ऊपर सारा या 4 आदमियों के ऊपर सारा काम है, बाकी लोग के ऊपर उतना काम नहीं है। तो टीम के अंदर ये देखना कि किस आदमी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या उसकी स्ट्रेंथ को हम पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रेंथ को पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं और ओवर बर्डन नहीं कर रहे हैं, देन वी कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। Most of the time, sir, ऐसा होता है. I have seen and I have discussed with lot of other HR professionals. उसमें क्या होता है? Suppose there are 2 people in the team, X and Y. The X is very much capable, very proactive, and his time management skills are excellent. But why? You need to follow up with him, you need to guide him, but he is also doing fine. So what most of the people do, they rely totally on X. So what they do, they put lot of pressure on X, that X gets frustrated, gets उसको एंजाइटी होना। वो एक टाइम पे वो मोटिवेशन रहता है कि मुझे काम मिला, मैंने जल्दी किया, एप्रिसिएशन भी जा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस उसकी लाइफ में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज देयर आर 2 मेंबर इन द टीम, यू आर पेइंग टू 2 people. We need to understand this thing. We all are there for the work. We all are equally responsible. हम सबकी strength थोड़ी अलग अलग है, but one can't be 0 and another can't be 100%. If somebody is 100%, another is definitely at 60 to 70%. So let that person push to perform 85% or 80% from 70%, instead of reducing his work from 70 to 50% and overloading this person from 100 to 120%. So this is the balance a leader need to create. Sometimes it happens that a person is affected by some external factor, maybe the personal problem, and he or she is not able to perform. Like somebody is associated with you for maybe 3 years or 4 years, and he is doing fine, but suddenly he is not. So being a leader, you need to understand that this is temporary. You connect with him again, not the contact, connect, understand the situation and allow some time. उसका उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हैंड होल्ड करना भी जरूरी होता है। तो एक लीडर को टीम में वो बैलेंस करके रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि एक का बर्डन उठा के दूसरे को दे दो। जनरली क्या है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखेंगे तो क्या होता है कि सीईओ ने एचआर हेड को बुलाया, अरे भाई आओ ये तुम बीआरएस की पॉलिसी यार बनानी है, वो थोड़ा सा मुझे वो ये अभी 3,000 आदमी है, अभी अपने पास पैसा नहीं है देने के लिए यार, वो क्या करो कि थोड़ा कम करो, 600-700 आदमी कम करो, हम सैलरी नहीं दे पाएंगे। अब एचआर हेड आएगा, वो अपने टीम को बुलाएगा या अपने जूनियर को बुलाएगा, मतलब अपने टीम को बुला के बैठा के कि भाई लिस्ट बनाओ, देखो क्या होना है, क्या करते हैं। तो मतलब ओपन एंडेड आपके पास एक कहना चाहिए क्वेश्चन आया कि आज ओपन एंडेड, ये आज 500 आदमी कम करने हैं, ठीक है, बिल्कुल।
और उसके बाद में आपने भी आगे ओपन एंडेड पकड़ा दिया कि हाँ भाई बना लो, देख लो भाई, कर लो क्या करना है, ठीक है। अब जो उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप उनसे डिस्कस करने से पहले आप उस रूट कॉज में नहीं गए कि भाई 500 क्यों कम करने, 400 क्यों नहीं करने, 700 क्यों नहीं करने, या इन लोगों के साथ हमें दूसरा क्या करना है। आपने एक चीज को पकड़ा और आपने उसको फॉलो करना आगे, स्टार्ट कर दिया। उसको आगे आगे पास आउट कर दिया। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। क्या करा कि अपनी टेंशन उठा के नीचे टीम में दे दी, और जब अगर वो प्रोजेक्ट पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो साहब टीम ही बिल्कुल बेकार है, इसमें तो ये वो 4 आदमी है, ये किसी काम के नहीं है, ये तो कुछ करते ही नहीं है, मतलब। तो अननेसेसरी, इफ लीडर इज नॉट करेक्ट देन ही ओनली spread these fears, and and fears will convert in stress and anxiety or all those things. तो जब भी आप इनसिक्योरिटी फैलाएंगे तो आपको भी इनसिक्योरिटी प्राप्त होगी। ये एक जनरल टेंडेंसीज है यहाँ पे बहुत, हर हर अभी जो हमारे जितने भी देख रहे हैं या लोग सुन रहे हैं, उसमें हर लेवल के लोग हैं। बिल्कुल। तो उन सब के लिए, किसी के लिए रिसीविंग स्ट्रेसफुल है, किसी के लिए गिविंग स्ट्रेसफुल है, किसी के लिए सॉल्यूशन नहीं आ रहा है दिमाग में, वो एक स्ट्रेस हो जाती है। अब होता क्या है जनरली, आप इस चीज को समझो, आप ऑफिस से जो स्ट्रेस लेके घर जाते हो, ठीक है, जो भी स्ट्रेस आप ऑफिस से घर लेके जा रहे हो, वो आपके घर का पूरा माहौल खराब कर देगी। आपके घर के अंदर आप उस स्ट्रेस को पूरे घर में इनडायरेक्टली स्प्रेड आउट करोगे। और अगर आप ऑफिस में स्ट्रेसफुल हो तो आप घर के अंदर चैन से नहीं बैठ सकते। इसको वाइस वर्सा समझ लीजिए, अगर आपको अपने घर के अंदर आपके स्ट्रेस है, आपके घर के अंदर शांति नहीं है, तो आपके ऑफिस में, आपके काम में भी शांति नहीं होगी, वहां भी आप स्ट्रेस ही फैलाओगे। अगर आप घर से लड़के पिट के आए हो तो आप ऑफिस में भी सेम आपके बिहेवियर में दिखाई देगा। होता क्या है, चाहे आप ऑफिस के अंदर आप में स्ट्रेस आए, टेंशन आए, जो भी आए, वो आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है, और आपका बिहेवियर जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। और अदर साइड आपका बिहेवियर आपके रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। अब दो ही चीजें हैं, या तो आपका प्रोडक्टिविटी, आपके जो वर्क लाइफ है उसके अंदर इम्पैक्ट होगी, और बिहेवियर में जो आपके इमोशंस वगैरह जो चीजें आएंगी वो आपके फिर घर में रिलेशंस में इम्पैक्ट करेंगी। तो वही चीज है सर कि उस पर्टिकुलर चीज को वो हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि हम उस फ्रेम से बाहर ही नहीं आ पाते, चाहे वो हम ऑफिस में रहे फिर घर में रहे, हम उसी वही चीज हमारे माइंड पे इतनी डोमिनेंट होती है उस टाइम पे कि सिर्फ हम वही सोच रहे होते हैं। एक्चुअली एकता इसलिए होता है कि जब हमारा दिमाग अशांत होता है और हम अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल क्या मतलब, जब हमारा दिमाग हमारी बात नहीं सुनता है तो उसके लिए दो चीजें होती हैं। पहला चीज ये होता है कि हमारा मस्तिष्क जो भी डेटा उसने लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है, जो भी इमोशंस जनरेट हुए हैं, उनको या तो वो एम्पलीफाई कर देगा या उनको सप्रेस कर देगा। तो जब कोई भी इमोशन हो या आपके पास कोई भी डेटा या फीलिंग जो भी आपके दिमाग में आई है, जो भी थॉट आया हुआ है, उसको आपका मस्तिष्क क्या करेगा, या तो एम्पलीफाई करेगा या उसको सप्रेस कर देगा, उसको एज इट इज नहीं लेगा। जब आप एज इट इज लेने की कंडीशन में होते हो, चीजों को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में होते हो एज इट इज, जैसी वो हैं, मतलब ना तो आपने एम्पलीफाई की है ना आपने उनको सप्रेस किया है, तब आप बेस्ट कंडीशन में होते हो किसी भी चीज के ऊपर डिसीजन लेने के लिए। तभी आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई आप एचआर के आदमी को बायस फ्री होना चाहिए, तो वो बायस फ्री उसको इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिससे वो चीजों का एज इट इज ले सके, वो क्लैरिटी हो। अब तीन चीजें हैं यहाँ पे जो आप, ये इंटर रिलेट है आपस में, कॉन्फिडेंस, स्पीड और डायरेक्शन। ये तीनों चीजें आपके वर्क लाइफ से भी कनेक्टेड है और आपके घर की लाइफ से भी कनेक्टेड है। ये तीनों चीजें फाउंडेशन है आपके मस्तिष्क में, जो भी थॉट या स्ट्रेस और टेंशन सब पैदा होती है। किसी भी चीज को आप देखते हो या करते हो तो उसके लिए आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है,
और एक Absolutely. स्पीड, और एक आपको स्पीड चाहिए होती है करने के लिए, और एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है करने के लिए। ये तीनों चीजें यूजलेस हैं अगर आपको क्लैरिटी नहीं है। अगर Right. आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो आपके लिए तीनों चीजें यूजलेस है। और क्लैरिटी जब आएगी जब आपका मस्तिष्क जो है वो शांत होगा, उसके अंदर ये सब चीजें नहीं होंगी। ये लास्ट में, हम लास्ट के 10 मिनट में डिस्कस कर लेंगे कि हाउ टू बैलेंस ऑल दिस थिंग्स, व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल फॉर दिस, दैट आई विल गिव इन 5 minutes. I think we should take the question from the viewers basically, जिनके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। नहीं तो हम ओपन एंडेड ही इस तरीके से करेंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द पीपल। सो प्लीज आपके जो भी दिमाग में हो वो क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिखें, then we will read and we will try our best to give you the solution of your questions. तो हम एक कॉमन क्वेश्चन सर अभी ले लेते हैं जो सभी चल रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस, कि घर पे रह के वही सब कुछ आजकल मिक्स हो रहा है, घर से काम करना, सारा दिन भर ऑनलाइन रहना, तो वो टीम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। उतना कंसंट्रेशन के साथ जैसे ऑफिस में जाते थे तो सिर्फ ऑफिस का ही काम करते थे, घर में रह के वो काम ना होना, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस वाला हम कैसे ज्यादा अच्छे तरीके से अभी कर सकते हैं? So this is the question asked by 4-5 member from the group which we received last week. देखिए, पहली चीज तो आप ये समझिए कि वर्क, मैं थोड़ा सा जो रूटीन एचआर है उससे अलग हट के बता रहा हूँ आपको। वर्क लाइफ और ये जो पर्सनल लाइफ है ऐसी कोई चीज नहीं होती, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। लाइफ एक ही होती है, जो आपकी जिंदगी है, जो आपके पैदा होने से आपके मरने तक रहेगी, वो एक ही लाइफ है। और घर के खर्चे चलाने के लिए आप घर से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, चाहे वो आप इसीलिए काम करते हैं जिससे आप रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर सकें। ये जीवन के अंदर आता है, जीवन से बाहर नहीं है। मतलब ये दो तरह की लाइफ नहीं है कि मेरी एक लाइफ वो है, वो लाइफ आपकी एक ही है। जिंदा होने से मरने होने तक के बीच में जितना भी घटनाक्रम है, जो भी आप करते हैं, वो सब आपके लाइफ में है। उससे ना पहले कुछ है ना उसके बाद में कुछ है, वो सिर्फ बातें हवाबाजी है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को अगर आप वास्तव में मजबूरी के साथ कर रहे हैं तो आप के रिजल्ट हमेशा खराब ही होंगे। इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। आप कोई भी काम करें, चाहे आप घर में झाड़ू लगाएं, अभी जैसे क्या कहते हैं, पोछा लगाएं, या घर में आटा गूंदें, रोटी बनाएं, दाल सब्जी बनाएं, घर वालों के हाथ में काम बटाएं, या ऑफिस में जाके काम करें, या ऑफिस का काम आप अपने घर में आके करें। तो इसमें आपको ये चीज समझना, जो भी काम आप कर रहे हैं वो काम आप में अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो आपके रिजल्ट भी कभी भी 100% नहीं हो। कोई भी आप काम करेंगे, आप अगर अपना 100% दे रहे हैं बिना किसी चीज की चिंता किए, तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे और आपके मस्तिष्क में ये शांति होगी कि आपने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर दिया है। वो जैसे 100% हम कैसे दे, वही चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम 100% दे नहीं पाते हैं। लोग जैसे बार बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे उसमें मन नहीं लग रहा है, तो वही अगेन है कि आप अपनी एनर्जी को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लीज डाइवर्ट करिए जिससे आउटपुट आए। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम डे पे हम अपनी पूरी एनर्जी, हम एक रात में पूरी बुक पढ़ लेते हैं, वो गो थ्रू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी उस टाइम पे सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वही होती है कि मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ भी नहीं करना। हम सोना भी भूल जाते हैं, हम एक टाइम का खाना भी स्किप कर देते हैं। तो दैट इज द डेडिकेशन, दैट इज योर मोर देन 100% वेयर वी डिवोट। और पूरी, जैसे हम अगर नॉर्मल लाइफ में अगर हम डेली के पूरे साल की बात करें, हम मुश्किल से 2 घंटे पढ़ते हैं, वी डिवोट ओनली 1 hour or 2 hour for our studies, but during exam time we devote 14 hours, 12 hours, 13 hours. So वो हम उतना कंसंट्रेशन उस पे बनाते हैं कि उससे हमें आउटपुट मिलना शुरू होता है। जब एग्जाम में हम होते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती है कि पेपर देना है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। बाकी हमें उस 3 घंटे के लिए दिमाग में कुछ भी नहीं होता, हमारा माइंड बिल्कुल एम्प्टी होता है। उसे कहते हैं कंसंट्रेशन, कि आपके माइंड में आप बिल्कुल क्लियर हो। एक था, अभी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े बहुत अच्छे और बड़े इंटरेस्टिंग।
सोनिया त्रिपाठी जी ने पूछा है, हाउ शुड वी डील विद फ्रीक्वेंट चेंज एट वर्क, फॉर एग्जांपल इफ स्टेक होल्डर्स वर, मेरा चश्मा थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंडिसिसिव अबाउट ए प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट, और इफ न्यू मेंबर ज्वाइन योर टीम। तो इसमें क्या है कि जो इनका क्वेश्चन है वो दो तीन मतलब है तो एक पार्ट में, लेकिन इसमें सपोर्टिव में जो इन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है उसमें दो क्वेश्चन और पैदा हो जाते हैं। दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, और बड़ा प्रैक्टिकल भी है कि आप किसी और पे डिपेंडेंट हो अपना काम करने के लिए, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। दिस इज द कि आप क्लाइंट है, वो आपको डिसीजन आपने कर दिया, उसने डिसीजन चेंज कर दिया, या कोई एकदम से नया मेंबर आया, अब आप उसके ऊपर सब कुछ डाल भी नहीं सकते, तो आप उस टाइम पे ओवरलोडेड हो। यस, दिस इज एब्सोल्युटली वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इफ यू आर ए लीडर, दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। एक तो आप लीडर, और दूसरा आप कहना चाहिए कि एग्जीक्यूशन लाइन में हो, लेकिन टीम मेंबर हैं आप अपने आप को लीडर समझते हो जबकि आप हो नहीं। तो दोनों चीजें दोनों एस्पेक्ट से देख लीजिए कि कई बार होता है कि बॉस जो है वो आपको बुला के एक काम देता है मॉर्निंग में, और उसके बाद में फिर एक काम और पकड़ा देता है, फिर जाते जाते शाम को एक काम और आपको बताया जाता है, और तीनों कामों की वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है। ठीक है, अब काम क्या होता है, आप पहले काम को समझो। काम क्या होता है, ऑफिस में आप करते क्या हो? ऑफिस में दो तरह का काम होता है। एक तो वो होता है जो आपको मालूम होता है आपको करना है, आपका डेली रूटीन का काम है, आपकी टेबल पे है। और दूसरा वो काम होता है जो आपका बॉस आपको बुला के दे देता है कि ये आप जरा ये कर लो। So we have वीर सर ऑनलाइन। हेलो सर, आप हैं? सर ने शायद अभी हमें ज्वाइन किया है। हेलो। I think he is on mute mode. Okay, now we have Virender sir with us. So Virender sir will be joining us as a guest. Hello sir. नमस्कार वीरेंद्र जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया। तो मैं सोनिया त्रिपाठी जी के क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, हाउ शुड वी डील विद फ्रीक्वेंट चेंजेस एट वर्क। तो सर का मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। सर वीरेंद्र सर, I think most of us knows him very well. More than 3 decades का उनको experience है, and he has done a lot of things in talent development, OD intervention, organizational development. तो सर का काफी rich experience है। Sir headed the HR function for Maruti. Sir, welcome you. जी दीपक सर। तो जब आपके जो एक्चुअली मेन चीज क्या है कि अगर नट शेल में हम बात करें तो फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफिस में होते हैं, वो खाली आप ऐसा समझ लीजिए कि लीडरशिप के या पर्टिकुलर उससे नीचे जो आपकी स्ट्रेटेजिक लेवल है, या फिर आपका जो प्लानिंग लेवल है, या जो एग्जीक्यूशन लेवल है, ये सारे लेवल्स पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही लेवल के ऊपर आएगा, खाली एग्जीक्यूशन लेवल के ऊपर आएगा, बाकी लोगों के ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको जो सबसे पहला चीज डिसाइड करना है वो सिर्फ 2 फैक्टर देखने हैं। क्या आप वो काम कर सकते हैं? पहली चीज आपको देखनी है, जो भी काम आपको मिला है ऑफिस में, चाहे वो आपको उसके बाद दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला है, जो भी आपको काम में चेंजेस हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखना है क्या आप वास्तव में उस काम से बात भी हो रही है। और अगर आपको मालूम है कि आप उस काम को कर सकते हैं, तो फिर आप ये देखिए क्या आप उस काम को करना चाहते हैं। तीसरी चीज ये है कि उस काम की प्रायोरिटी क्या है। क्या आपने अपने कामों की टू डू लिस्ट या प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है? मेरे साथ भी होता है ऐसा, बहुत कई बार होता है कि मेरी टीम ने मुझे कोई चीज मुझसे पूछी है, वो मेरे पास आई हुई है, बीच में सीएफओ ने कुछ और बीच में अपना टांग अड़ा दिया, उसने कुछ अपना बोल दिया, मार्केटिंग के हेड ने अपना कुछ बोल दिया, और चेयरमैन साहब ने बुला के कुछ और कह दिया कि ये ऐसा होना है। तो एक काम जो मैं अपने तरीके से करना चाह रहा था, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए।
सर तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, मैंने ऐसी थोड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन मतलब मैंने डील किया है। जो सोनिया जी का क्वेश्चन है कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसकी आपने पूरा काम कर दिया, प्रायोरिटी एकदम से चेंज हो गई, अब उनको कुछ डिफरेंट काम चाहिए और आपकी टीम में ऑलरेडी कोई नया मेंबर आया जिसपे आप 100% नहीं डाल सकते हो। तो आई हैव फेस सच सिचुएशन एंड दिस इज रियली डिफिकल्ट एट टाइम्स टू हैंडल। सोनिया, इसमें क्या होता है कि we must focus on two things. One, our time management. जैसे if we are in office for 9 hours, then 1 hour of us should be for the planning कि नया मेंबर आया उसको मैं अपना कौन सा टास्क डेलीगेट कर सकती हूँ फिलहाल के लिए, और आधा घंटा उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना है सो दैट कि मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा मैनेज करके उसको इतना डेलीगेट करूँ, सिखाऊं कि मेरे को अगले 5 दिन के बाद से मेरी स्ट्रेस जो है वो कम होनी शुरू हो जाए। तो आप वो लिस्ट बनाओ कि कौन सा टास्क सबसे पहले आप उसको डेलीगेट कर सकते हो। सेकंड जो है कि क्लाइंट बेस्ड आपका सारा सिस्टम है कि क्लाइंट की डिमांड सुबह कुछ है, शाम में कुछ है, तो कम्युनिकेशन शुड बी वेरी प्रॉपर। The one thing which when you are totally dependent on other party, आपके पास प्रोजेक्ट के लिए काम आया, थर्ड पार्टी है, बॉस ने आपको बोल दिया है, मेक मैक्सिमम कन्वर्जेशन इनटू राइटिंग। आप पहले क्लैरिटी लो कि आपको क्या चाहिए और कितने टाइम फ्रेम में चाहिए, देन एनालाइज योर फ्रेम कि आपके पास अब जैसे 8 घंटे है, 8 घंटे में आपके पास ये वाला काम है, एंड देन सीक हेल्प फ्रॉम योर लीडर और योर बॉस कि मेरे पास अभी 3 टास्क हैं, क्लाइंट ऐसे चाहता है, मेरा ये प्लान है, आप प्रपोजल दो। आप सॉल्यूशन के साथ बॉस के पास जाओ, ये मत बोलो कि डोंट थिंक कि हम इसको नहीं कर सकते या फिर मैं कैसे करूं, सुबह ऐसे मांग रहे हैं, शाम को ऐसे मांग रहे हैं। आप अपने हिसाब से बेस्ट प्रपोजल बनाओ जो आप परफॉर्म कर सकते हो, उस प्रपोजल को आप आगे जाके उनके साथ डिस्कस करो। एंड जो हमसे सीनियर होता है या टीम में जो कलीग होता है, सबको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता है, वो ब्रेनस्टॉर्म करके और काम हो जाता है। तो आप कम्युनिकेशन को राइटिंग में रखिए। आपको 3 टास्क दिए हैं, आप उनसे उनकी प्रायोरिटी पूछिए, विच वन इज मोस्ट अर्जेंट फॉर यू, सो दैट वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल अदर थिंग्स अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करिए और उसको फिर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। अगर क्लाइंट आपको शाम को कह रहा है नहीं ऐसे नहीं, अब मेरे को ऐसे चाहिए, तो आप उनसे अगेन कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए दैट दिस इज was your priority, we have worked accordingly, now to perform this task in a effective manner to give you output we need this particular time, और आप हमें ये टाइम अलाउ करेंगे तो आपके लिए भी रिजल्ट अच्छा आएगा और हमारे लिए भी। एंड आई थिंक जिसको रिजल्ट चाहिए होता है, जो इन्वेस्ट करता है, वो इन चीजों को समझता भी है, एंड यू विल गेट लिटिल टाइम। अब उसमें आप टीम अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो अगर कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं, उसमें आप टीम वर्क प्लीज करिए, दूसरे पे रिलाई होना सीखिए, हाथ पकड़ना सीखिए और दूसरों को टास्क डेलीगेट करना सीखिए। दूसरों का कुछ जब फ्री टाइम होता है दूसरों को सपोर्ट करना भी सीखिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न समथिंग एंड यू कैन टीच समथिंग न्यू टू सम अदर पर्सन। सो वर्मा जी टीम में आप कह रहे थे। हाँ, एकता जी, हम मैं रविंद्र सर let me add with you that you have very beautifully explained about time management. बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को कि आपने बहुत ही खास तौर पे इतना सुंदर विषय आपने चूज किया है। और उसके अलावा आज डॉटर्स डे भी है। हैप्पी डॉटर्स डे टू एवरीवन एंड इंक्लूडिंग यू। यू आर आल्सो अ डॉटर एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द हैप्पी डॉटर्स डे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड देन दिस टॉपिक इज वेरी एप्ट। तो जो आपने बात कही कि वाकई में प्रायोरिटाइजेशन इज द रूट कॉज ऑफ स्ट्रेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, उसको हम मोटा मोटा मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बात करूं तो हमें ABC 3 कैटेगरी में अपने टास्क को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। A मीन्स अपना, B मीन्स बॉस का और C मीन्स कंपनी का। So accordingly we have to define, so which is the priority. So when it comes the organization priority, so this is your priority also, your boss priority also. And similarly in other forms the delegation you have beautifully explained, usko hum bolte hain 3D method. 3D means deflect, which is not your task, divert it, and second is delegate, and third is do it. तो करना तो पड़ेगा ही जो आपका काम है. So this is how we have to do it. That's what works in the corporate world. So you can't avoid work, but you have to prioritize, and at the same time you have to selectively delegate and monitor it also. Thank you. Absolutely, sir. That's what I wanted to add. Yeah. Thank you, sir. एक और क्वेश्चन था किसका, सोनिया जी के बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा था। बेस्ट वे टू मैनेज लाइफ बैलेंस इज टू कंट्रोल योर एक्सपेक्टेशंस। यस, एब्सोल्युटली।
हम एक्सपेक्टेशन मतलब उतना नहीं होना चाहिए। वी मस्ट नो कि हमारा प्रायोरिटी क्या है, काम क्या है, एक्सपेक्टेशन अपने आप कम हो जाएंगी क्योंकि हम फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, इसमें एक बहुत सीधा सा बात है, जिंदगी में आपके साथ जो भी परेशानी आती है उसके सबसे बड़े कारण आप ही हैं, ठीक है? वो कोई दूसरा उसका के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं, जो भी आपके साथ हो रहा है। मतलब जब तक कोई आकाश से कुछ बिजली आपके ऊपर नहीं गिरती, जब तक उससे पहले की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप ही की क्रिएट की हुई हैं। आपके मस्तिष्क ने क्रिएट की हैं, आपके ब्रेन ने क्रिएट की हैं, आपने ही क्रिएट की हैं। आप खुद ही अपने आप को डिप्रेस करते हैं, आप खुद ही अपने लिए स्ट्रेस पैदा करते हैं, आप खुद ही अपने लिए सब कुछ करते हैं। और अगर आज आप जॉब में नहीं है और आप परेशान हैं, आपको जॉब मिल नहीं रही है, तब भी ये भी आपकी गलती इसलिए है क्योंकि आपने जिंदगी में केवल एक ही स्किल सीखी थी जिससे आप एक ही तरह का काम कर सकें, एक ही तरह का जॉब कर सकें। इसके अलावा आपने जिंदगी में कुछ दूसरी चीज सीखी नहीं है, तो ये भी आपकी गलती है, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। अगर आप सिर्फ एक ही काम जानते हैं, दुनिया में दूसरा कोई काम नहीं जानते, तो इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है। आपने क्यों सीखा भाई एक ही काम? आप 4 तरह काम सीखते, अगर ये काम नहीं चल रहा तो मैं कोई दूसरा कर लूंगा। अगर मैं 8 महीने 9 महीने 1 साल 2 साल में मुझे जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता? तो जितनी भी टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सब आपके मस्तिष्क के बनाए हुए गेम है। ये गेम इसलिए है क्योंकि आप अपने मस्तिष्क पे ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपकी नहीं सुनता, आप उसकी सुनते हैं। जब तक आप मस्तिष्क की सुनते हैं, आप कभी भी सफलता के कहना चाहिए लेयर्स को, फ्लोर्स को, उस शिखर को नहीं छू सकते जो आपको छूने चाहिए। उसका आप हमेशा फिर क्या करेंगे? आप एक्सक्यूज मोड में रहेंगे, आप बहाने ढूंढते रहेंगे। इसमें मतलब नटशेल में आप कहता हूं कि आप आज जो भी कुछ हैं, आपकी चाहे फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे आपकी इस सोशल स्टेटस है, या आप जो भी आज की तारीख में है, वो आप अपने मस्तिष्क की वजह से है। केवल आपका मस्तिष्क ही आपको उस जगह पे खड़ा किया। ये आपके केवल थॉट प्रोसेस है, आपके एक्शंस हैं, आप जो आपने किए हैं उनका रिजल्ट आपके सामने है। ये किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप अगर 4 स्किल अपने अंदर रखते तो ठीक है, मुझे आज एचआर की जॉब मिल रही, मैं यार कुछ और काम कर लूंगा, उसमें क्या। राइट सर। सर अभी प्रवीण सर का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और आप दोनों बहुत ज्यादा सीनियर हैं तो डेफिनेटली वीरेंद्र सर, मैं आपसे इसमें आप प्लीज मेरे को इसमें थोड़ा सपोर्ट करिए। क्वेश्चन इज, इन्होंने पूछा है कि हाउ वी कैन कन्विंस इफ नोविंगली मैनेजमेंट पुट एवरीथिंग ए प्रायोरिटी स्टफ। तो सर काफी सीनियर है, मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, सर प्लीज बताइए कि ऐसी सिचुएशन में हम कैसे डील करें। आप एक प्रश्न को जरा दोबारा दोहराएंगे? क्या प्रश्न है उनका प्रवीण जी का? प्रवीण जी का प्रश्न है, हाउ वी कैन कन्विंस इफ नोइंगली मैनेजमेंट पुट एवरीथिंग ए प्रायोरिटी स्टफ एट प्रायोरिटी स्टफ। ओके तो ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत प्रश्न पूछा है अपना प्रवीण जी ने। नॉर्मली फॉर सीनियर बॉसेस हर एक चीज प्रायोरिटी ही होती है, वो बताते हैं कि यही प्रायोरिटी है। बट जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि आपको भी उसको प्रायोरिटाइज करना है, व्हाट सीनियर्स हैज प्रोवाइडेड। कुछ चीजें होती हैं कि आज ये लीगल है, इसका टाइम बाउंड है, आज ही इसका एक्शन होना है, और अगर नहीं लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रांड वैल्यू है वो स्टेक पे है, ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत स्टेक पे है, और लीगल केस है विच इज वेरी वेरी डेंजरस। तो यू हैव टू समटाइम्स गिव इनसाइट्स टू योर सीनियर्स ऑल्सो। आपको उनको लिटरली थिंक भी करवाना है, उनको बताना है कि सर यू हैव गिवन मी दीज 3 टास्क and this is very critical from organization perspective, and this is we can delay for some time, and if you convince them with logic, I am 200% sure your senior will get convinced and share with them what is the threat if we don't do it and what is the cost. And जो बिजनेस के जो सीनियर्स लीडर्स होते हैं वो एक ही भाषा समझते हैं, या तो रोकने की भाषा, और या फिर वो समझते हैं कि ये लीगल जो फियर है दैट इज वेरी डेंजरस, एंड वो आपकी बात से कन्विंस हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल फार्मूला बता रहा हूँ कि जिस तरह से हम बताते हैं,
जनरली पीपल एक्सेप्ट इट। बिल्कुल सही। तो जो सर मैंने अभी बोला था, प्रवीण सर आप कर एक सकते हो। मैं ऐसा बहुत सारी बार करती हूँ कि आपने मेरे को मैनेजमेंट से 5 टास्क मिले, वो कहते हैं अभी ये वाला काम करके दो, तो आई गिव विद प्रपोजल, आई गो विद प्रपोजल टू देम कि आपने मेरे को ये 5 टास्क दिए हैं, मेरे पास इसको करने का ये प्रपोजल है, इसमें कोई चेंज है तो मुझे बताओ, सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट। तो आप वो एकता, ये भी प्रायोरिटी अपनी आपने बनाइए। हाँ एकता आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि आप जो टास्क आपको प्रायोरिटाइज वाइज टॉप पे लगता है ना, तो आप हमको बोलते हैं कि आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ मीन्स डोंट कीप द टास्क विद यू, complete the राइट, task, give it to the seniors, let him take a decision on them. In the meantime, you gain a time and work on the other aspects and other projects also. यस, And पुट द slowly and बॉल इन slowly, देयर कोर्ट। yeah. No, ball is not like not putting a ball in their court, but gaining time for you should be able to concentrate. You can't handle 10 tasks together. So राइट better it सर। is you complete one, give it to him. That is the top priority. And then in the meanwhile, mention in your mail and communication that, sir, I am working on the other aspects also. Keep them informed so that they are relaxed. So they are not So also having anxiety. So two things are very important. One is proper communication, another is Yeah. the delegation. आप यहाँ पे डिफाइन, हम यहाँ पे काम आता है कि हमने अपना टीम को कितना डेवलप किया। अगर हम सब कुछ अपने पास ही लेके चलते हैं तो एटलीस्ट टीम को उतना आना चाहिए कि आपको पूरा बेसिक काम करके दे दे, पूरा रॉ मटेरियल तैयार कर दे, आपके लिए रिपोर्ट रेडी कर दे, सो दैट आप दूसरी रिपोर्ट पे काम कर ले, दोनों रिपोर्ट को एक साथ ले जाके आप प्रेजेंट कर दे, उस पर डिस्कशन कर ले जो आपका पार्ट है। बट यू मस्ट डेवलप द पर्सन हु इज वर्किंग विद यू। ऐसा नहीं, उस पे वो ट्रस्ट बनाना सीखिए, उसको वो काम बताना सीखिए। जी, team development and delegation is another topic that can be taken later on. So that's a very advanced topic, so which can be added on this. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ। हमारे अभी जो चैट चल रही है, मतलब जो लाइव चैट चल रही है, उसमें श्री दीपक भरारा जी आए हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है। वेलकम सर, वेलकम टू दिस। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं एक बड़ी छोटी चीज शेयर करता हूँ। जब मैं मैनेजर था किसी टाइम में, मैं एज ए डेजिग्नेटेड मैनेजर था, भरारा साहब उस टाइम में डेजिग्नेटेड वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते। जी। तो वो, मैं तो उनको अपने गुरु की तरह, अपने बड़े भाई की तरह ही, मतलब हमेशा इज्जत रही है, और मतलब मुझसे तो बहुत 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 सीनियर है। उनके प्रश्न का जवाब, great regards for him and welcome sir into this. he is veteran HR, और हम तो मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं तो अभी बच्चा ही हूं उनके सामने का, और अभी भी वो मुझे एज ए छोटे भाई मतलब ट्रीट करते हैं। उनका क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। उनका क्वेश्चन मैं वीरेंद्र जी को दे रहा हूँ। हाउ कुड चेंजेस इन एक्सटर्नल फैक्टर्स such as COVID, which creates issue for an individual, is because of him or her? आप एक बार दोबारा प्रश्न को रिपीट करेंगे? मैं लास्ट पार्ट नहीं समझ पाया। हाँ, मैं करता हूँ। How could changes in external factors such as COVID, which creates issue for an individual, is because of him or her? जी, ये बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है, और मेरे सीनियर ने पूछा है तो क्वेश्चन तो वजन रखेगा, अपने आप में एक गुगली होगा और हैवी वेट होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। और देखिए, जो कोविड-19 का सिनेरियो आया, वो थिंग्स वर अननोन टू एवरीबॉडी। जिसे बोलते हैं कि फियर ऑफ अननोन। किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं थी, नॉट इवन चाइना वेयर इट स्टार्टेड, नॉट इंडिया, यूएसए, एवरीबॉडी हैड अ वेरी डोमेन व्हिच वाज नॉट नोन टू एनीबॉडी। तो कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो उस चीज को, कुछ लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं, और छोटे से समय में ही व्यवहार के लिए कि अभी मैं सारी इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट कर लूं। तो व्हाट दे डू इज दे गो एंड देन दे गो टू द नेट, दे गो टू द चैट, they go to the ICMR site also, they collect information, and जो उनकी एंजाइटीज होती हैं उसको वो धीरे धीरे कम करने के लिए कोशिश करते हैं, और अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
एंड मोस्ट ऑफ द रीजन, जैसे कि मेरे भाई साहब दीपक जी ने बताया, कि रीजन ऑफ स्ट्रेस होता है और इस सिनेरियोज जो होते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं, वो उसका कारण क्या होता है कि हम उसको इस सिनेरियो में ब्रेन में अपने आप ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हम इसको हम ठीक तरह से कर नहीं पाएंगे। ये हमारा एक ऐसा नेगेटिव थॉट ब्रेन में जाता है, और अगर वो इंडिविजुअल अपने माइंड को स्ट्रांग करके ये कहता है कि यार दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, इट्स एडवर्सिटी, एट द सेम टाइम इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सर्टेन थिंग्स फॉर मी, तो उसके लिए वो उस डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। और उसका जो स्टिमुलस आता है और रिस्पॉन्स वो क्या करता है कि उसकी जो एक्शन डिफाइंस द डायरेक्शन टुवर्ड्स हाउ ही डील्स विद इट एंड हाउ ही कम्स आउट ऑफ दिस सिनेरियो वेरी फास्ट। मैं आपको एक बड़ी लाइव एग्जांपल बताता हूं कि जिस तरह से ये माहौल आया कोविड-19 का, तो लॉकडाउन हुआ, सभी कंपनी के लिए हुआ, सब सारी जगह पर इस तरह का मतलब माहौल बन गया कि किस तरह से डील करेंगे। कोविड-19 के पेशेंट्स आ रहे हैं, क्वारंटाइन है, घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, तो किस तरह से कंपनी खोली जाएगी, ये सबके लिए एक बहुत ही टिपिकल सिनेरियो था। और सेम वाज ट्रू फॉर अस आल्सो। तो हमने जब लॉकडाउन में बैठे थे, तो हमारी एक छोटी सी टीम है, बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत डिजिटल अजाइल टीम है। तो हमने सोचा कि इससे हम क्या एक ऐसा एलिमेंट बना सकते हैं कि जिससे सारे जो लोग हैं उनको हम एजुकेशन भी दें, सिखाएं भी, अवेयर भी करें, और उनके हेल्थ का डाटा भी हमारे पास आ जाए। तो हमने एक 6 दिन में 6 डेज वंडर हम उससे बोलते हैं, एक वेलनेस मित्रा करके एक ऐप बनाई, जो कि हमने अब एक्सटेंड करी है, ऑलमोस्ट मोर देन 36,000 एम्प्लॉइज को है, जिससे उनको कनेक्ट कर दिया। और जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वी यूज टू गैदर एंड शेयर विद स्प्रेड विद द पीपल। तो वही हमारी टीम, कुछ लोग जो थे वो स्ट्रेसफुल थे, बीमार थे, घबरा गए, वो टेंशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, और उसी प्रकार से हम जो हमारी जो टीम थी, they were fully engaged and mentally engaged, and then they started working in the positive direction, and then they created wonders of this 6 days wonders wellness mitra app, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी आ गया, और बाद में रोगे सेतु के साथ भी लिंक कर दिया, and that brought and we found it as an opportunity to work in the adversity. So these are certain things which can handle, but yes, he and she can cope depending upon his state of mind, and at the same time जो दीपक भाई साहब अक्सर बताते हैं कि उसका कारण भी हम ही है और सोल्यूशन भी हम ही है, तो हम ही ने उस पर काम करके। वीरेंद्र जी, मैं इसमें एक छोटी चीज ऐड करूंगा। देखिए, ये लाइफ आपकी है जी जी, ये मेरी नहीं है, मेरे पड़ोसी की नहीं है, ना मेरे घर में और किसी की है, ठीक है, ये मुझे ही जीनी है। अभी मान लीजिए मेरे सिर में दर्द है, तो उसका पेन क्या है वो मुझे मालूम है, बाकी घर में जितने भी मेरे नियर एंड डियर हैं वो खाली एम्पैथी सिंपैथी जो भी आप कह लो, वो उस मोड में ही रहेंगे, वो उस चीज को फील नहीं कर सकते, वो उस डेंसिटी में नहीं आ सकते। बिल्कुल। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा, जो भी नॉलेज, जो भी चीज आपके अंदर आ रही है, बेसिकली आप उसे लेते कैसे हैं, आप उसे एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, क्या आप उसे एक्सेप्ट एम्पलीफाई वे में कर रहे हैं, या आप उसे सप्रेस करके कर रहे हैं, या फिर आप उसे एज इट इज ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपको नॉलेज मिल सकती है, आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन आप विजडम कहीं से नहीं ला सकते, वो आपकी अपनी है, वो आपको ही अर्न करनी पड़ेगी। मैं किसी कंडीशन में अगर कोई काम करता हूं और उससे सक्सेस हो जाता हूं, जरूरी नहीं है कि उसी कंडीशन वो आपके साथ भी हो और आप भी उसी चीज को रिपीट करें और आप कामयाब हो जाए। बहुत खूबसूरत ढंग से, हाँ, बहुत खूबसूरत ढंग से आपने बताया डाटा तो। सर एक आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, और अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं, इस सेशन को आज के लिए अभी कंक्लूड कर देते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिस्पॉन्ड इफ योर मैनेजर गिव यू नेगेटिव फीडबैक इन फ्रंट ऑफ योर पीयर्स। बोलिए, मैं तो बता दूंगा, खैर आप बोलिए। व्हाट आई बिलीव, मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट कि कोई भी नेगेटिव फीडबैक इज लाइक जो हमने स्टार्ट किया था मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, बट दिस इज व्हाट यू कैन क्रिएट
कि हमने उसको नेगेटिव फीडबैक ना बोल के हमने उसको बोला एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो वी हैव चेंज द वर्ड. सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता. दीज आर योर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. अब हमें यहाँ पे और ज्यादा काम करना है. तो आपको सबसे पहले कि आपको कोई सबके सामने नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, दिस थिंग इज लाइक कि आपको मैनेजर से शायद 1-to-1 टॉक करना चाहिए कि आप मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लीज मेरे को एक बार बताइए, लेट मी वर्क आउट, और उसके बाद आप ऐसा करना स्टार्ट करिए अगर आपको फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं लगता है तो ओपन एंड एक साफ सुथरा सा डिस्कशन कैन ऑलवेज कम्स टू ए कैन एंड टू ए गुड कंक्लूजन. तो आप वो बैठिए, बात करिए, कम्युनिकेट करिए उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के माइंडसेट से, ना कि ये कि मेरे को ऐसे बोल दिया, सबके सामने बोल दिया, मुझे बुरा लग गया. आपको बुरा लगा, दैट इज फाइन, बट आप अब वो ये देखिए कि उस चीज का सॉल्यूशन क्या है. तो फीड योर ब्रेन विद समथिंग कि जिसका एक सॉल्यूशन आपको मिले और आप आगे से ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करें. आप उनके साथ बैठिए, बात करिए, अपने जो गैप्स हैं उन पे सीरियसली वर्कआउट करिए, और अगर गैप्स नहीं है तो आप उनको बताइए कि आपकी वजह से ये गैप नहीं है, इस गैप का रीजन ये है. तो या तो आपको सपोर्ट चाहिए या आपको टाइम चाहिए. तो जो भी रिक्वायर्ड सपोर्ट या टाइम है आप उनसे वो प्लीज उनके साथ डिस्कस करके और वो मांगिए. आई थिंक फिर वो प्रॉब्लम सामने जब एक कम्युनिकेशन क्लियर होता है दो लोगों के बीच में तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे शॉर्ट आउट हो जाती है. सबसे ज्यादा क्या होता है, हम खुद परसेप्शन बना के चलते हैं. हो सकता है बॉस के ऊपर भी प्रेशर हो सकता है उनको 4 और भी काम हो सकता है, ही इज रनिंग आउट ऑफ द टाइम, या फिर इट कैन बी एनी रीजन. आप उस चीज को भी बैक ऑफ द माइंड कंसिडर करके चलिए. सिर्फ परसेप्शन मत बनाइए कि मेरे को ही ऐसा बोला गया. तो आप बैठिए, बात करिए और शॉर्ट आउट कीजिए. एक था यहाँ पे एक बहुत सिर्फ 2 लाइन ऐड करूंगा मैं आपको. सोनिया ने जो बेसिकली क्वेश्चन किया कि हाउ टू रेस्पॉन्ड इफ योर मैनेजर गेव यू नेगेटिव फीडबैक इन फ्रंट ऑफ योर पीयर्स. अब यहाँ पे बात यह है कि आपका जो मैनेजर है वो सबके सामने आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, ठीक है. हाँ, तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं यहाँ पे बताता हूँ. मेरे विचार में सिर्फ 2 चीजें हैं कि अगर उसने पहली बार ऐसा किया है तो आप उससे 1-to-1 बोलो, साहब मेरे में 1 लाख कमी हो सकती है, बट सबके सामने आपको इस तरह से बात करने का कोई राइट नहीं है. वेरी क्लियर. और अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है कि उसकी नेचर ऐसी है, वो आपको ही नहीं वो बाकी और लोगों को भी सबके सामने ऐसा करता है, सीवी बनाइए, जॉब दूसरा ढूंढ लीजिए. एक बेकार और इस तरह के 3rd क्लास बॉस के साथ काम करना अपने कैरियर को खत्म करना है, बर्बाद करना है. दूसरी बात, वो मैनेजर लीडर होने के लायक ही नहीं है जिसको ये नहीं मालूम है कि अपनी टीम मेंबर्स को किस तरीके से और क्या कहना है, कब कहना है, किसके साथ में कहना है, नहीं कहना. एक अच्छे लीडर को हमेशा एक बहुत छोटी सी सक्सेस के ऊपर सबके सामने अपनी टीम के मेंबर को अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके ब्लंडर मिस्टेक के या गलती के या जो भी उसने किया है कमरे में अकेले बुला के, चाहे आप उसको मुर्गा बनाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको अपने बंद कमरे में आप उसको बोलिए जो भी बोलना है, लेकिन सबके सामने आपको इंसल्ट करने का वो नहीं है. अगर कोई भी फंक्शन हेड या कोई भी लीडर या कोई भी मैनेजर अगर ऐसा करता तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का राइट नहीं है. मतलब being as a HR head, if I get any complaint, something like that, I don't think I'll give only one warning to that person, and if I receive another stance like that, I'll make the full and final of that person, who maybe it is. I don't care about that. So क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी पूरी टीम की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो खत्म हो जाएगा, पूरी टीम की हार्मनी चली जाएगी अगर आप इस तरह की हरकत करते रहे, टीम का मनोबल डाउन करते रहे. ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो या गलती ना करता हो. आप ऑफिस में हैं तो गलती करेंगे, आपका बॉस भी करता है, बॉस का बॉस भी करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके सामने आप नेगेटिव फीडबैक दें. आपको सबके सामने अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि बोलना भी पड़े तो आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको पॉजिटिव वे में कन्वे करना है. यस, ये चीजें हैं, ये आपको इम्प्रूव करनी चाहिए. बट नेगेटिव दीपक जी ने बहुत सुंदर बात कही कि एम्पैथी इज द फर्स्ट टूल व्हिच अ लीडर मस्ट हैव.
और क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या कम्युनिकेट करना है और किस ढंग से करना है, बहुत जरूरी है। और मैं आपको बहुत सुंदर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी भी बताते हैं कि वो एक बार फेलियर हुआ और जो लीडर है उसने सारी जो मिस्टेक थी अपने ऊपर ली, और जब वो विन कर गए तो उसने अपने टीममेट्स को क्रेडिट दिया उसका। बहुत खूबसूरत बात कही, मैं धन्यवाद देता हूँ दीपक जी, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने बताया। वो वीरेंद्र प्रायोरिटी जी है। देखिए और ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशन को खराब करने वाले लोग होते हैं, और दे आर नॉट, एब्सोल्युटली सर। दे डोंट हैव एनी राइट टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन। वीरेंद्र जी, इन लास्ट जस्ट आई एम कंक्लूडिंग दिस, लीडर के सिर्फ या 3 काम है, चौथा जी कोई काम नहीं है। लीडर का पहला काम है टॉक्सिसिटी को, जो भी टॉक्सिक कल्चर है या टॉक्सिक पीपल है, जो भी टॉक्सिसिटी है और जो साइलोज हैं उनको एलिमिनेट करना, वो उसकी फर्स्ट यस प्रायोरिटी। दैट्स इट। उसकी सेकंड प्रायोरिटी है जो थिंक बिजनेस, नो द बिजनेस एंड रन द बिजनेस। यस और उसकी थर्ड प्रायोरिटी है आपकी क्रिएट द लीडर्स। if एब्सोल्युटली if leader is not creating the leaders, then whatever the leader he is just good for nothing. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो If सर you are आज का not सेशन, जी सर हम आज का सेशन सर अभी कंक्लूड कर ले कि आज बिल्कुल हमने बिल्कुल टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए जो इतना अभी हमने ऑलमोस्ट 1.5 आवर का डिस्कशन हमारा हो गया है, तो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हमें जो टेंशन को एलिमिनेट करने के लिए जिन पे फोकस करना है, तो वो फर्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, हमें अपने खुद से उसको निकालना है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अपना प्रायोरिटीज, सेकंड इज सेटिंग द प्रायोरिटीज। थर्ड थिंग इज आपका वही थॉट क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्थ इज आपका कम्युनिकेशन और टास्क डेलीगेशन। एंड द लास्ट वन इज एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड टास्क, जो चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं लेकिन आउटपुट नहीं दे रही हैं, उनको अपने लाइफ से निकालना। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज सेशन। I hope this will help most of us to eliminate some part of the tensions जो अभी तक हम लेके चल रहे थे, जिनकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो वी आर ऑलवेज ओपन टू द क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट करते रहिए, और जब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो वी कैन हैव अनदर कैंडिड कन्वर्जेशन, और वी कैन हैव ए लर्निंग वीकेंड विच इज अनदर पार्ट ऑफ द कोर एचआर आईआर ग्रुप एक्टिविटी। तो हम उसमें भी उसको ले सकते हैं। सर कंक्लूड करें आज के लिए। बिल्कुल एक लास्ट वंडरफुल एंड एक लास्ट लाइन में ऐड करूंगा, बहुत सुंदर बात कही है। एंड वी हैव टू गेट आवर सेल्फ एंगेज ऑल्सो। जैसे हम फुली एंगेज रहते हैं तो स्ट्रेस तो हमारे आसपास ही नहीं फड़कती है। तो व्यस्त रहें, बिल्कुल बिल्कुल मस्त रहें और स्वस्थ रहें, ये हमारा आप एक नारा है। देखिए, आप जो भी काम करते हैं अगर आप उसको ओ करते हैं, आप जी उसके ओनर हैं और आप उस जी काम जी को करने का प्यार करते हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं हो सकता। काम की वजह से तो स्ट्रेस नहीं हो सकता। जी 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 ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। काम का वजन बढ़ सकता है लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं और आप अपने काम को जानते हैं, तो या आपको एब्सोल्युटली आपको स्ट्रेस नहीं होगा, ये तो गारंटेड है। दूसरी बात है कि लव योर आप बाकी जो फैक्टर्स हैं उनके लिए आपके पास एक ही टूल है बहुत बढ़िया, आप अच्छे से मेडिटेशन करना सीख लें। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो टॉक्सिसिटी भरी हुई है वो निकल जाएगी, उसमें जो रिसाइकिल बिन है उसका वो खाली हो जाएगा, और थोड़ा सा आपकी भी जो क्लैरिटी है और विजडम लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप चीजों को वैसा देखना शुरू कर देंगे जैसी वो है। ठीक है, मैं ओके। दीपक की बात को दोहराता हूँ कि दीपक ने बहुत खूबसूरत बात कही कि पहली शुरुआत में उन्होंने बताया था कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, और ना ही हम उस ब्रेन को क्लीन करने के लिए कुछ करते हैं। शरीर को करते हैं पर मस्तिष्क को क्लीन करने के लिए करते हैं। तो अगर हम मस्तिष्क को क्लीन करना शुरुआत कर दें तो ये चीजें और एक्सटर्नल फैक्टर्स और ऑल दीज थिंग्स विल नॉट अफेक्ट अस, वी विल रिमेन स्टिल इवन इफ आवर टर्मोइल इज देयर। आपका मस्तिष्क जितना शक्तिशाली होगा, आपके सामने समस्याएं उतनी ही कम होती चली जाएंगी। So that's We the power need of mind. to Thank you very unlearn much. something to learn something new. कुछ Thank चीजें you. हमें अनलर्न करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसके साथ हम चल रहे होते हैं, विच आर एक्चुअल बैरियर फॉर अस, और उसको अनलर्न करके अनडू करके प्लीज एड समथिंग न्यू, सम न्यू लर्निंग एंड कीप मूविंग। जस्ट लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, लिसन टू गुड पीपल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आजकल तो नेट पे इतना सारा कुछ है कि हम डेली बहुत कुछ नया सीख सकते हैं।
धन्यवाद करते हैं सभी दर्शकों का, जो भी हमारे सभी एचआर के या नॉन एचआर के मित्र लोग आए और उन्होंने अपना समय निकाला। हालांकि 1 घंटा बोला था, लेकिन अभी 1.5 घंटा हो चुका है। इट्स मैराथन, इट्स जस्ट लाइक ए फुल इंग्लिश मूवी। तो और हम लोगों ने जो भी बात की, इसमें कोई फॉर्मल बात नहीं थी। ये आप एक जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम 17-18 मित्र आपस में दोस्त लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो आप भी अपनी बात कर रहे थे, मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ, एकता भी अपनी बात कह रही है, वर्मा जी भी अपनी बात कह रहे हैं। तो हम सब लोग यहाँ बैठ के सब 17-18 लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। तो अब इसमें जो भी जिसको जो काम की बात लगी हो उसको रख लें, और जो लगा ऐसे ही है उसको वहीं छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, थैंक यू वीरेंद्र सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। सुलझी हुई भाषा में आपने चीजें जो बताई हैं, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच दीपक सर, हमेशा उस वैल्यू एडिशन के लिए, शेयरिंग दैट नॉलेज। आई विल बी हैप्पी इफ एनीवन रीच टू मी एंड आस्क समथिंग, देन आई एम ऑलवेज देयर। Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Veer also for organizing such a wonderful session always, and he's doing a tremendous job. Thank you, Ekta. Thank you, Deepak ji, and thank you so much, sir. Thank you, everyone.